Okay, so firstly, welcome on our channel FIFA Force. Thank you. क्या Thank you so much. क्या कहना है रिंकू मैम के गेम पे? हाउ मच प्राउड यू आर? I'm very proud. Yeah, we're very proud Very of proud. her. She's a real self, Yeah. and she's very strong-headed. Yeah. And I'm sure she'll come out as a winner. What you want to see watching ma'am in Big Boss house? What's the feeling? Oh, I'm very proud. Yeah. See, Rinku being a private person, going to the big house is a great step that she's taken. And she's being her real self there. उसने कैरेक्टर्स को बहुत प्ले किए हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स, बट हियर शी इज हर रियल सेल्फ. A private person who takes time to get to know people, who takes time to open up, and that's Rinku. Yeah, I think रिंकू का सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि वो बिग बॉस हाउस में आई है. बिकॉज रिंकू प्रोफेशनली बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, बट इन हर रियल लाइफ ऑल्सो 30 ईयर्स से वो इंडस्ट्री में है. बट वो कभी किसी के साथ इतनी क्लोज बॉन्डिंग नहीं रखती कि मेरे को एक्टर्स हैं या क्रिएटिव्स हैं या चैनल पीपल हैं या प्रोड्यूसर्स हैं. वो आती है सेट पर, काम करती है, शी इज बैक होम. And she's a very private person, she's a very family person. So if she's taken a decision to be a part of this show, and उसके लिए ये बहुत बड़ा exposure है अपने आप को खुलासे में रखना as Rinku. Agree. So none of the world would ever knew Rinku in these 30 years what they will actually see her. Yeah. So I think Big Boss is Rinku ने अपने आप को एक challenge देकर उसमें enter की है, and hats off to her, and I'm sure she's doing well. Agree. Yeah. जानना चाहूँगी, जब रिंकू मैम ने आप लोगों को बताया था कि ओके आई एम टेकिंग दिस बिग डिसीजन, व्हाट वाज योर रिएक्शन? We were very happy. We were very happy. Because वो जब मना करती थी तो मैं उसे बहुत गालियाँ देती थी. I used to tell her कि how could you say no to such a big platform? I mean, यार अपने आप को दिखाना और इतना बड़ा platform, and you're an actor, you're a celebrity, and you've been in the industry, and why not? Her personality is But that. हाँ, like I said, she's a very reserved person, very Yeah. private. तो उसको ऐसे लगता था बिग बॉस में जैसे कंट्रोवर्सीज हो जाती Yeah. हैं, या हो सकता है आपके कुछ फैमिली के ऊपर कुछ बात करेंगे which she would never want to talk about. So that is the reason she never wanted to come. But now she said कि कोई कुछ भी बात कर ले, I am open to be there and let the people know who I am and what I am. So that is why she's there. ओके, उनकी मैं अगर गेम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनका गेम स्लो चल रहा है, बट काफ़ी मैच्योरली वो अपने गेम को हैंडल करी. इस पे क्या कहना है आपको? I think she's playing in a very dignified Yeah. manner. See, Rinku is not a 20-year-old girl जो उसको शोर शराबे करने हैं या she has to become arrogant and she needs to fight and all that. तो ऐसा नहीं है कि उसको बुरा नहीं लगता होगा या ऐसा नहीं है कि उसे गुस्सा नहीं आता होगा, बट उसको लगता है कि यार this can let go. I mean, it's not important. और अगर उसको लगता है कि she needs to put her foot down, like in case of Manara she just did yesterday, so she did that. तो जब situations आएंगी जहाँ उसको foot down रखना है वो रखेगी, और जहाँ लगता है कि जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती का she's not going to create an issue out of it. Age and experience matters. Yeah, so I think it's only her experience and age. It's not about why she's not aggressive and why she's not on the front foot. It's not about the front foot. She is her original self. Yes. वो रियलिटी में भी ऐसी है. वो लोगों को देखने के लिए या कैमरा पे दिखने के लिए वो कुछ भी नहीं करेगी. वो बोलेगी मैं नहीं दिखूंगी, मुझे चलेगा, बट मैं जो करूंगी वो मैं अपना रियलिटी करूंगी. So she'll not fake it up. मुझे यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट टू से फॉर मनारा. लास्ट एपिसोड में ही मनारा के साथ अनबन हो गई है, मनारा को बुरा लग रहा है इस बात पे. But I think Manara like she's a crybaby. She's very immature. क्योंकि उसको नॉमिनेट किया है तो उसका रिएक्शन इसलिए ऐसा है. I'm sure अगर रिंकू ने या जिग्ना जी ने नॉमिनेट नहीं किया होता तो मनारा एकदम फाइन होती, और जिसने उसको नॉमिनेट किया होता वो रिएक्शन उसके पास जाता. So it clearly shows कि जो मनारा रिंकू को बोल रही थी, ओ आप एक महीने से इस कमरे में फेक वो कर रहे थे, तो शायद अगर मुनव्वर ने उसे नॉमिनेट किया होता या किसी और ने तो वो मुनव्वर को भी यही बात बोलती. तो बेसिकली उसे जो नॉमिनेट करेगा वो फेक है. सो टेक्निकली मनारा इज फेक बिकॉज शी इज नॉट एबल टू हैंडल हर नॉमिनेशन. एंड अभी तो सिर्फ शुरुआत है. सो मेनी वीक्स टू गो. हो सकता है अगले टाइम में मनारा रिंकू को नॉमिनेट कर रही होगी तो रिंकू थोड़ी ना मनारा की तरह बिहेव करेगी. शी ऑल्सो
someday someone is going to nominate her. So you have to mentally be prepared only for that. Exactly. Because if you're never going to be nominated, तो फिर तो आप winner हो ही गए ना, फिर game show की क्या जरूरत है? So I think it's fine. Manara is just acting very immature. And रिंकू ने भी जो उसको बोला है is only कि उतना ही वो हैंडल कर ले, ठीक है, कि उसको ज्यादा एग्रेशन, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. वो मनारा जो सब कर रही है तो वो रिंकू को बहुत बचकानी हरकतें लगती है, तो इसलिए शी सेड कीप इट टू योरसेल्फ. एंड मनारा एंड मुनावर की जो दोस्ती है, मुनारा जो हमने स्टार्ट में देखी थी काफ़ी ऑर्गेनिक, प्योर, फॉर एवर लग रही थी. अब उनके बीच में भी अनबन आई है, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग विद देयर फ्रेंडशिप. नहीं आती है, जैसे वो ना मनारा की पर्सनालिटी है. आई थिंक शी इज अ सेल्फ सेंटर्ड अटेंशन गेनर है. तो मुनावर उसको अटेंशन, या कोई भी, नॉट मुनावर, एंड मुनावर मतलब ऐसा नहीं है, ही फील्स शी इज इमैच्योर्ड, तो थोड़ा वो I think he's just showing that friendly concern. But it doesn't give any name or tagline कि oh they are coming somewhere and it's squaring up to something else. No, I think it's a very clear friendship. मुनारा kiddish behave करती है. Yeah, she's behaving kiddish and it's a very clear friendship. And मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बारे में बोलना चाहिए उन लोगों के बारे में, because unnecessarily it tampers somebody else's image. So why should you do that? Why should you have your judgments over somebody's मतलब किसी अच्छी खासी दोस्ती को भी आप एक रिश्ते का नाम दे दो and tomorrow वो इस रिश्ते में नहीं है, it may have a negative impact in their own families. So why should we do that? I don't think we have a right to tamper with anybody's character. I don't think we should be judgmental about anyone. मुनावर ने कहा आज तक जिंदगी में इतना किसी ने सताया नहीं जितना 4 लड़कियों ने बिग बॉस में I सताया. think that is the cutest statement and hats off to him कि वो चारों अलग अलग एज ग्रुप की और अलग अलग औरतों के साथ डील कर रहा है. खानजादे और मनारा उसका केस लेते जा रहे हैं, और रिंकू एंड जिग्ना जी आर मोर लाइक सिस्टरली एंड मदरली फिगर. So I think he's one Krishan Kanhaiya amongst all the women in the room. He shares a good relationship. Yeah, and I think he's a great guy. He's a very sweet boy and God bless him. He's really good. स्टार्ट से ही जिग्ना मैम के साथ रिंकू मैम की काफ़ी अच्छी दोस्ती नजर आ रही. इस दोस्ती पे क्या होता? I think it's only about their maturity level. Yeah. That's why they've connected. शायद अगर रिंकू भी इन लोगों की तरह बिहेव कर रही होती, 20-30 साल की एग्रेसिव लड़की, तो शायद जिग्ना जी रिंकू के साथ भी शायद कनेक्ट नहीं कर रहे होते. She would take her own time because she's seen so much in life. उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रहा है कि अभी ये सारी जब आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में देख लेते हो तो फिर ये ऐसा लगता है कि ये क्या है, like it's nothing. It happens with us also. So I think it's all with age. It's got nothing else. And Jigna and Rinku are almost on the same age line. They mature well. खाने पीने की शौकीन है, खाना बनाने की शौकीन है, like घरेलू खिलाने की शौकीन है, घरेलू औरतें हैं. तो I think that is the reason they go well. ईशा, अभिषेक, समर्थ, क्या कहना है इन? They are totally Abhishek is cute. Abhishek is cute. Isha and Samarth are fake, ड्रामेबाज, दिखने के लिए कर रहे हैं. Yeah. Absolute drama queen and total chaos जो तीनों साथ में हैं. अभिषेक is the cutest and actually बहुत genuine है वो. चाहे उसकी फीलिंग्स को लेकर हो, चाहे उसके एग्रेशन को लेकर हो, चाहे उसके इमोशंस को लेकर हो, and now he's got this little cute element with खानजादी. So I think वो बहुत अच्छा लग रहा है. And उनके बीच में भी ऐसे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन वो ना थोड़ी सी वो उसकी एज के हिसाब से वो कहते हैं ना a very puppy infatuated what you call थोड़ा सा लव शो कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेंडशिप, थोड़ा मनाना, थोड़ा रूठना, तो थोड़ा अच्छा फील नहीं लग रहा है. It's looking like a nice. They're going with the flow. क्या होता है पता नहीं. Yeah. I think it's a cute thing. Samarth is मुझे ऐसे लग रहा है Samarth आया ही क्यों है? He's doing nothing. मेरे को लगता है ईशा के नाम पर आया और अभी ईशा के बाद उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए. And ईशा सिर्फ इन दोनों को इस्तेमाल कर रही है अपने अपने आप को दिखाने के लिए and whatever wherever she wants to style. और अगर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो probably ईशा will be with somebody else. So ईशा का but she's leaving a bad impact. Yeah, she's leaving a bad impression for herself. मतलब me as a mother मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो उनके पेरेंट्स को भी कैसे लग रहा होगा. I mean any which way see that's her personal life. We as a viewer whatever we are saying is completely nothing personal as per what we are seeing. We've got nothing to we have no right to go anywhere into her personal life or attack her character. But we are not attacking her character by saying all these things. What we are trying to say is that if ever Isha hears us, अगर कभी उसने सुना कि हम जो बोल रहे हैं is only कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत दिख रही है.
So as a viewer, as a well wisher, we are telling her, we wish her all the best. Yeah, And everyone. Yes, yes. that's all it is. I mean, no offense. ओके, गेम के अब अभी इस पड़ाव पे जाना चाहूँगी। गेम के इस पड़ाव में मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब रिंकू मैम को किसके साथ बना के चलनी चाहिए एंड किससे दूर रहना चाहिए? I think Rinku has a strong bond with Jigna, which is fine, which is great because वो बहुत organic relation है. She has a very good relation with Munawar also. So from game perspective, I will not say. मैं रिंकू को ये बोलूँगी कि रिंकू अपने ट्रू रिश्ते बनाती रहे. जो ट्रू रिश्ते हैं वो साथ खड़े ही रहेंगे, बट एट द एंड ऑफ इट इज अ गेम फॉर एवरीवन. तो आपके नजदीक से नजदीक इंसान भी आपको नॉमिनेट करेगा, बट वो उसके लिए भी एक गेम है जैसे वो आपके लिए है. सो आई थिंक शील डू गुड विद, इफ शी रियली मेक्स वेल, आई थिंक शील डू गुड विद विकी, शील डू गुड विद मुनव्वर, शील डू गुड विद जिग्ना. हाँ, विकी से थोड़ा उसको केयरफुल भी रहना पड़ेगा बिकॉज ही इज वेरी मैनिपुलेटिव. वो अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता है because he wants to win the game and वो बहुत clearly visible है. And he probably could be a good and a dangerous competitor for Rinku, but otherwise I think she could go far well with these people. मैम, आपको क्या कहना है, आपके हिसाब से रिंकू मैम को किसके साथ बना के चलने चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए? और रिंकू खुद समझ जाएगी, शी इज सेंसिबल इनफ बिकॉज शी विल नॉट प्लान कि मैं इससे बनाऊं. अब देखो, जब आप वहाँ रहते हो, इकट्ठे आप रहते हो, तो आपको समझ आ जाती है. तो उस हिसाब पे फिर आप किसी से इतना डिस्टेंस रखोगे, किसी से इतना रखोगे. सो दैट्स लाइक जैसे मनारा एंड रिंकू के केस में, अब जो रिंकू और मनारा का इंसिडेंट हुआ है, जितना मैं रिंकू को जानती हूँ, शी विल मेंटेन अ थिन लाइन विद मनारा बिकॉज शी वुड गो to any boundaries to support her. बट अगर आप अपनी बदतमीजी का दायरा वो कर देते हो, और फिर जब रिंकू का ऐसे आ जाता है ना कि नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट, डोंट कम टू मी, जैसे उसने खानजादी को भी बोला था, वो उनके साथ रहेगी बट वो बहुत थिन इनविजिबल लाइन हमेशा रहेगी उसके साथ, कि वो एक दरवाजे को पार करके रिंकू तक नहीं आ, मतलब अपने फायदे के लिए वो नहीं बोलेगी चलो आज मैं इनसे फ्रेंडशिप. शी नॉट डू इट, शी नॉट डू दैट. सो डू यू थिंक ये वीकेंड के बार पे सलमान खान मनारा की क्लास लगा सकते हैं? लगानी चाहिए मुझे लगता है. हाँ, मुझे Not because Manara and Rinku are involved. Individually also, I don't think. या आई थिंक सलमान सर अगर उन रिंकू को और मनारा को और रिंकू जिग्ना की जी भी को क्लास लेकर लगानी है, अगर हाँ. वो उनको फीडबैक देते हैं और समझाते हैं, तो Yes. कम से कम उनके फीडबैक से ये तो समझ में आ जाएगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. Yeah. ठीक है, अगर अब मनारा को लग रहा है कि रिंकू और जिग्ना ने गलत किया, बट हो सकता है सलमान सर के समझाने से उसे समझ में आएगा कि इट इज नॉट दैट दे आर रॉन्ग विद यू, इट इज द बड़ी वे. अच्छी तरह है. हाँ, एंड आई थिंक सर एक्सप्लेन्स वेरी वेल. Yeah. एंड बाकी ऑफ कोर्स अपने अपने समझने की बातें, कई बार तो सर के समझाने के बाद सर की बातों को भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि नील ने किया था शुरू में जब सर ने नील को कुछ बोला था, तो नील को सर की बातों पे भी ऐसे लग रहा था, सो आई थिंक इट्स सबकी अपनी मेंटालिटी है. रिंकू को भी कुछ समझाना है. हाँ. जरूर समझाना. Yes, definitely, and we तो would really want Salman sir Yes. to give True picture of- his opinion Yeah. about how Rinku's game is doing, कहाँ उसको क्या करना चाहिए. Yeah. अगर गलत जा रही है तो उस चीज को ना करे, और सही जा रही है then she should keep up to it. So we तो really look forward for sir's feedback. Yes. Yes. इस सीज़न में दिल के मकान में भी काफ़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है. दोनों कपल्स अंकिता एंड विक्की, नील एंड ऐश्वर्या आपस में काफ़ी लड़ रहे. इनकी लड़ाइयों पे आपको क्या कहना है? आई थिंक वो अपने आप को बहुत गंदा दिखा रहे हैं एज अ कपल ऑन स्क्रीन. अगर तो वो ये गेम के लिए कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर वो सचमुच कर रहे हैं तो उनको हरगिज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज लुकिंग वेरी बैड एज अ कपल ऑन स्क्रीन. Yes. इससे ये मैसेज आता है कि कभी किसी कपल को एक साथ ऐसे शो में जाना ही नहीं चाहिए, Absolutely. क्योंकि गेम खेलने के लिए, गेम जीतने के लिए आप एक दूसरे की इज्जत उतार रहे हो, जो पूरी दुनिया देख रही है, विच इज वेरी रॉन्ग. और अगर आप रियलिटी में ऐसे हो, देन इट इज इवन अ शेम दैट यू आर अ कपल. एक कपल के लिए कहा जा रहा है कि टॉक्सिक है, डिवोर्स ले लो. दूसरे कपल के लिए कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिसरिस्पेक्ट करता है. विक्की डिसरिस्पेक्ट करता है हाँ. अंकिता की, ये बात हो रही है. आपको क्या कहना है, एज पर यू विच कपल इज राइट? I think Yeah, whom you Aishwarya like? is very toxic in her relation with Neil, very toxic. But I hats off to Neil कि वो Yeah. अपनी वाइफ को समझते हुए बहुत अच्छे से उसको संभालता है.
और अंकिता और विकी का तो रिलेशन कहीं दिखता ही नहीं है। आई थिंक उनका रिलेशन सिर्फ वो एंट्री पे डांस करते हुए दिखा था, उसके बाद विकी तो ऑन हिज ओन है, उसको नहीं फर्क पड़ता अंकिता है नहीं है क्या है, उसका मकसद एक ही है कि मुझे गेम जीतना है, चाहे अंकिता साथ हो या नहीं हो, चाहे उसकी इज्जत में फर्क पड़े या नहीं पड़े। It doesn't make a difference. अंकिता मदर बन के हर रोने वाले के पास पहुंच Yeah, because Ankita wants her husband's shoulder, और उसको वो शोल्डर नहीं मिल रहा है तो वो अब कहाँ जाए? अब अगर वो उस घर में रह रही है तो she has no choice but to do this thing ना, otherwise क्या कॉन्वर्सेशन है उसके पास करने के लिए? मुझे तो वो काम करते हुए भी इतना कुछ दिखती नहीं है। I don't think she's really doing anything, and I'm quite surprised कि कंगना जी ने बोला कि she makes very healthy relations। मुझे तो अंकिता के कहीं रिलेशंस भी नहीं दिखते, so I'm quite surprised वो क्या रिलेशन बना रही है, उसका तो उसके हस्बैंड के साथ भी रिलेशन नहीं दिख रहा। ओके दिवाली का माहौल है, बिना रिंकू मैम के आप लोग ये दिवाली सेलिब्रेट करोगे, क्या कहना है? लाइक किस टाइप का सेलिब्रेशन है या व्हाट द फीलिंग? नहीं, लक्ष्मी पूजा करेंगे, उसके लिए प्रे करेंगे, और अच्छा है रिंकू अंदर है, वी डोंट वांट हर टू कम हियर, वी आर मिसिंग हर, but we want her to stay there till the end and come with the trophy with her sister and mother on her side. So हम लक्ष्मी पूजा में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी लक्ष्मी जो अंदर गई हुई है बिग बॉस में, वो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने हाथ में लेते हुए, उस लक्ष्मी को लेते हुए अपने घर वापस आए, उससे पहले अपना चेहरा भी नहीं दिखाए, और उसके हिस्से हम का चेहरा देख रहे हैं, उसके हिस्से का जितना भी फन एलिमेंट है, सेलिब्रेट करना, पूजा करना, ड्रिंक करना, मस्ती करना, वो सब हम कर लेंगे। मैम आपने कहा कि यू वांट कि सलमान सर भी रिंकू मैम को समझाए कि वो कहाँ गलत जा रही है या कहाँ उनका गेम अच्छा जा रहा है, बट आपसे जानना चाहेंगे व्हाट द थिंक रिंकू मैम शुड इंक्लूड इन हर गेम? आई थिंक रिंकू शुड डेफिनेटली शो हर फनी साइड, बिकॉज वो बहुत बबली है, बहुत मस्ती वाली है, शी इज सुपर हिलेरियस। वो अगर अपने मस्ती करने में आए तो मैं आपको बोल रही हूँ पूरा का पूरा घर एंड तक बोलेगा कि बस रिंकू को तो नॉमिनेट करना ही नहीं है, दे विल ऑल लव हर, बिकॉज वो वैसी है। एंड ऑल्सो उसका एक थोड़ा साइड है जहाँ पर यू नो कि उसको जैसे उसने मनारा को फॉर्मली बोला, तो आई थिंक उसको ऐसे वाला स्टैंड और दूसरे लोगों के साथ भी लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ लेट गो एटीट्यूड। तो वहां पर अगर इनको थोड़ा पुल ऑफ कर ले देन आई थिंक शी इज डूइंग परफेक्टली वेल। बाकी ऑफ कोर्स वी विश हर ऑल द बेस्ट, वी वांट टू सी दैट ट्रॉफी इन हर हैंड, एंड गॉड फॉरबिड अगर वो बिना ट्रॉफी के भी घर वापस आई, we are still very proud of her. Yeah, yes. Because she is her original self, yes. and that is what the show wants people over there to be. कोई नहीं चाहता कि आप अपनी एक फेक पर्सनालिटी क्रिएट करके कैमरास में दिखो, फिर लोग जब आपको प्यार करेंगे, आप जो हो आपको उसके लिए प्यार करेंगे जो आप दिखा रहे हो उसके लिए।